वेल हेलो हाय आदाब सत श्री अकाल और एक बार फिर से आ गया हूँ मैं आप लोगों के बीच आपका हमराज आरजे अब्रम 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी यानी कि ज्ञान की वाणी पर दोबारा से लेकर आए हैं आप लोगों के बीच में एफटीसी यानी कि फेस इन द क्राउड और हम लोगों का नया नवेला तीसरा एपिसोड। आज का दिन भी खासम खास है क्योंकि एफटीसी है और साथ में एक और खासम खास गेस्ट भी है हम लोगों के पास जिनसे अब मैं आपका तारुफ कराऊंगा, उनका इंट्रोडक्शन दूंगा आपको। इंट्रोडक्शन के लिए अच्छा खासा इंट्रोडक्शन हमारे पास है और कुछ वो भी जो हम नहीं जानते वो बाद में कुछ संध्या ऐड करेंगी। जिनका नाम है मिस संध्या लाड, जो कि हैं योगा जुम्बा इंस्ट्रक्टर और इसके अलावा और भी काफी सारा काम करती हैं। तो वो इसके बारे में हमें बाद में खुद ही बताएंगे वो क्या क्या चीजों में किन किन चीजों में इंस्ट्रक्ट कर रही हैं। बट हर इंट्रोडक्शन इज फर्स्ट। Sandhya is an exceptional fitness trainer who has a remarkable ability to connect with the individuals across all age groups. Her understanding of diverse fitness needs allows her to tailor her training program effectively, ensuring that each person, regardless of their age or fitness level, feels supported and motivated. One of the Sandhya's greatest strengths is her motivational approach. She has an innate ability to inspire and encourage her clients, pushing them to reach their potential while fostering a positive and uplifting environment. Her passion for fitness is evident in the way she conducts her sessions, always bringing energy, enthusiasm, though actually she also look like energetic, definitely, and a genuine desire to see her clients succeed. Her expertise in fitness, coupled with her empathetic nature, makes her a standout trainer. Sandhya's clients not only achieve their fitness goals but also develop a lasting appreciation for a healthy lifestyle. Sandhya, good morning. How are you? And Good very warm morning. welcome in FTC. Thank you so much for inviting me. Pleasure is all mine. So, अब ये तो पता है कि योगा है, जुम्बा इंस्ट्रक्टर भी हैं, इसके जी। अलावा और भी जितनी स्ट्रीम्स हैं इसमें फिटनेस में, क्या उसको लेकर भी काम करते हैं? जी हाँ। क्योंकि जब फिटनेस की बात होती है तो कोई एक फिटनेस को लेके हम नहीं चल सकते हैं, तो उसमें हम लोग को ऐड करना पड़ता है थोड़ा बहुत पिलाटेस, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, then yoga is always there, the stretching part should be Yes. there, and so Dance. many things are there. Yes, Bollywood dance you actually yes, teach. dance fitness is the always good to, it's a stress buster, so Yes. you should do every time. Wonderful. Yes. So, अब वही सवाल जिससे हम लोग शुरुआत करते हैं अपने गेस्ट से बातचीत करने की, आपसे पूछता हूँ, टेल अस अबाउट योर जर्नी हियर एट योर वर्क प्लेस, व्हेन यू स्टार्टेड वर्किंग एंड हाउ हैव यू इवॉल्व्ड एज अ ह्यूमन बीइंग, और साथ में एक और चीज जोड़ता हूँ, एज अ ट्रेनर. Yes, definitely. So I started my journey and I think 2003. Yes. So I started there. It was not a big thing. I just started from my home. 2-3 clients used to come. I trained them, and Okay. then slowly I pursue my, I update myself in some trainings. बिकॉज पहले हम जो सिर्फ डांस फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान देते थे, देन आई रियलाइज कि सिर्फ डांस फिटनेस करके कोई मतलब नहीं है, वी नीड टू एड सम मोर इन स्ट्रेंथ एंड ऑल दैट. Yes. So I upgrade myself by doing some certification in strength training, then Pilates, then body resistant exercises, and then I got one small studio and then I started my career. Oh, wow, wonderful. तो बहुत इनिशियल स्टेज से ही आपने जी, स्टार्ट हाँ, किया, जी. 2-3 क्लाइंट्स से, जी, देन जी. एक्चुअली जी 20-50 Yes, तो खैर काफी yes. होंगे अलग-अलग Yeah. सेशंस के हिसाब से. जी. God bless you for that, Thank especially. you. Okay. What made you choose the field of yoga? How did you prepare yourself for this earlier, or especially the fitness industry? So basically yoga is the holistic अपना इंडिया का स्पेशल ये है. तो योगा जो होता है, मैं बहुत सारे लोगों को ऐसे फॉलो करती थी जो बहुत ही अच्छे से मतलब लोगों को ज्ञान देते हैं योगा के बारे में, और ये सब बहुत अच्छे अच्छे जो उनके मतलब वीडियोस आई यूज टू दैट टाइम, इतना सोशल मीडिया नहीं था, बट थोड़ा बहुत गूगल पे आई यूज टू लाइक सी देम एंड ट्राई टू फॉलो देम. Then I got some certification in yoga also, and yeah, it's a peace kind of. When you are doing some yoga and all that, you got a very nice peace, a mindfulness. So I think yoga is important also. Okay. Yeah. Nicely explained. Tell us about your inspiration, especially for your work and your life. Yeah, In inspiration. My students, clients, actually, they are my great inspiration. Okay, because when you are with them, so you can realize everything. Like some people are like facing a severe problem. They come with the anxiety actually. Yes.
and you need to help them in all way. एम्पैथी, सिंपैथी। Exactly. आप क्या कि बहुत ज्यादा गुस्सा भी नहीं कर सकते, जी जी जी। डांट भी नहीं सकते। और ऐसा होता है कि कभी कभी जीरो से कोई बंदा लेके आ जाता है, तो हम उनको बहुत ही अच्छे से उनको पुश करना पड़ता है। यू नीड अ गुड कम्युनिकेशन विद देम, देन स्लोली वो थोड़ा हमसे जेल करता है, तो then he is prepared for the exercise and all that. It's not easy to do in a first session कि चलो आओ start हो जाओ, so it's not possible. So you need to make a proper bond with them. Sure. So definitely there are so many sources for the inspiration, but yeah, the clients, the students are the main inspiration. Oh wow, nice. अच्छा, मुझे एक चीज और पूछे, तो मतलब इसमें क्या हर एज ग्रुप, क्योंकि आपने तो मतलब स्टूडेंट्स के साथ भी काम करते हैं, किड्स के साथ भी करते हैं, एडल्ट्स भी हैं, उसके बाद मैच्योर पीपल भी हैं, वो भी हैं, Yes. तो कितने अलग अलग एज ग्रुप हैं और कितना आसान रहता है किसके साथ काम करना? मतलब किड्स के साथ कैसा है? एजेड हैं तो भाई उनके साथ थोड़ा मुश्किल भी होता होगा कि आप उनको बहुत ज्यादा पुश नहीं कर सकते, धीरे धीरे करना पड़ता है। तो हाउ वाज दैट? या किड्स के साथ में तो बहुत सारे हम स्कूल में उन लोगों को एरोबिक सेशंस देने जाते हैं, तो किड्स आर लाइक उनके साथ भी खुद ही किड होके कुछ करना पड़ता है। अदरवाइज वो समझेंगे अरे ये तो नॉर्मल टीचर जैसी कोई टीचर है, तो थोड़ा जोक्स वोक्स मार के थोड़ा सा उनकी तरफ से, मतलब जैसे ही हमारा जो माइंड होता है उन्हीं के साथ में जेल करके उनके थोड़ा सा एक्टिविटी में से उनसे एक्सरसाइज कराना पड़ता है। क्योंकि आप बोलोगे कि आप कोई स्क्वाट्स करो, लंजेस करो, तो वो बोलेंगे नहीं नहीं ये सब हम नहीं करेंगे। बट इफ आई प्ले वन सॉन्ग, समथिंग जॉली सॉन्ग, सो दे विल डू दैट, यस, विद द बिट्स दे एंजॉय इट। एंड थोड़ा मैच्योर के साथ में ऐसा हो जाता है, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग रखना पड़ता है कि व्हाट दे वांट एक्चुअली, व्हाट आर देयर गोल्स, व्हाई दे जॉइन यू, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली ऐसा नहीं होता है कि सारे लोग मतलब ऐसा बोला जाता है कि फिटनेस वही लोग उन्हीं की तरफ मतलब क्लासेस में जाते हैं जिनको पतला होना है, स्लिम होना है, या फिर ऐसा होता है। सो ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग एक माइंडफुलनेस के लिए भी आते हैं, थोड़ा स्ट्रेस बस्टिंग के लिए भी आते हैं, गुड वाइब्स के लिए भी आते हैं, फील गुड फैक्टर। स्पेशली द लेडीज, आई कैन से कि उनको बहुत अच्छा लगता है क्लास में आके, थोड़ा सा लोग मिलते हैं, अच्छी बातें होती है, थोड़ा सोशल एक अच्छा सर्कल बन जाता है उनको, तो दैट इज वेरी गुड थिंग। सो एवरी क्लाइंट हैव अ डिफरेंट कनेक्शंस एक्चुअली, आई मस्ट से। ओके, मतलब सबके साथ वो डेवलप हुआ, जी लेकिन जी, अच्छा होता है। Okay, what soft skills do you believe are most crucial for professional success? Well, for this success, I should say there should be a great communication skill with everyone, and you need to understand. एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी होता है। You shouldn't force anyone to do this, so just go very slowly, quietly, calmly. So you need to have a lot of patience. Patience is very important, I think so. कुछ स्टूडेंट्स स्पेशली ऐसे हैं कि जिनके साथ सच में रखना पड़ता हो किसी तरह से, कुछ नोटी टाइप वाले भी आते हैं ना स्पेशली। Well, okay. How has the evolution of artificial intelligence impacted various industries and especially your industries? आपके लिए थोड़ा फायदेमंद भी हुआ है? जी हाँ। क्या नुकसान भी हुआ है? What do you think? Especially about the AI thing. Yeah, AI generated thing is like, you know, you can get the proper nutrition, diet, exercises, charts, everything you can get from there. But yeah, so this is all the technology based thing. Especially. So you need someone who can guide you manually in front of you, who can see your exercise, the flow, the form is very important. So AI is fine every time, but not that time, like when you want someone in front of you. Oh yes, yes. Especially तो physically कोई तो मौजूद रहे। Exactly. ये सब चीज़ से मतलब वीडियो से आप सब कुछ तो नहीं सीख सकते। जी, correct. How do you tailor your training programs to meet the specific needs of different people? भाई जैसा कि मैंने बताया कि किड्स का अलग है, मैच्योर का अलग है, उनका जो नीड्स है उसके हिसाब से आप ट्रेनिंग प्रोग्राम कैसे? वही है कि सबका अपना अपना एक गोल होता है कि वो क्यों एक्सरसाइज करना चाहता है, क्यों क्लासेस में आना चाहता है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट गोल, ओके। एंड अपने यहाँ पे कैसा होता है ना कि एक्सरसाइज करने के लिए क्लाइंट तभी जाता है, बंदा या बंदी तभी ज्वाइन करती है कि जब उसको कोई डॉक्टर बोलता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है, या फिर जो भी कोई चीज है कि हाँ अब शादी होने वाली है भाई, थोड़ा सा वजन घटा लो। वो तो बहुत ही वो बहुत चलता ही है सोसाइटी के हिसाब से एक चीज है।
तो नॉर्मली ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं कि अभी मुझे डाइट करना है, डॉक्टर ने बोला है, तो अभी मुझे फिटनेस ज्वाइन करना है, जिम ज्वाइन करना है या जो भी करना सही है। है, किसी तरह संध्या का नंबर निकालो और फोन लगाओ कि हाँ हाँ ठीक है अवेलेबल हो, आ रहा हूँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए एक्चुअली। यू शुड डू द रेगुलर एक्सरसाइज एवरी डे। सो इट्स नॉट फॉर योर लाइक यू नो एनी डिसीज और समथिंग। अब स्टार्टिंग से ही आप अपने आप को फिट रखोगे तो आपको वो इशू आएगा ही नहीं। कोई भी Correct. जो आपके ब्लड कॉम्पोजिशन में है या वो सब जो है वो हमेशा अच्छा ही रहेगा, अच्छी राइट? तो इट शुड बी अ लाइफस्टाइल स्पेशली यू नीड टू से Exactly. कि भाई लाइफस्टाइल ही रखो ऐसा। you need to concentrate on that lifestyle and you need to follow it every day। आपको अपनी लाइफस्टाइल वैसे ही बना लेनी है। ऐसा नहीं है कि अब मैं कुछ तो हुआ है मुझे देन आई विल गो टू द क्लास। करेक्ट, सही बात है। यस। ओके, सो एक ये अभी डिफिकल्ट क्वेश्चन है आपके लिए। डिस्क्राइब अ चैलेंजिंग सिचुएशन यू हैव एनकाउंटर्ड एंड हाउ यू हैंडल इट। यस। इन टर्म्स ऑफ अगर आप शायद मतलब लाइफ में और तो रही होंगी बट विद स्टूडेंट्स और इन योर फील्ड। Yes, normally, you know, so the people are working here, you know, 9 to 5, working, then the traveling, especially in Mumbai, it's so hectic. Oh yes. And then after that, if you want to manage something 1 hour for the fitness is really a challenging for them. Okay? जब ऐसा चैलेंज लेके जब वो हमारे पास आते हैं तो it's a big challenge for us to entertain them, to prove yourself like कि yes उन्होंने एक अच्छा डिसीजन लिया है हमारे पास आके। So you should give perfect things to them. So we need to understand their goal first and then we need to make a proper plan for them. So basically हर एक पर्सन का अपना एक प्लान होता है, वो हिसाब से ही वो हम जाते हैं। ओके, तो कोई ऐसा मतलब कोई चैलेंजिंग तो सिचुएशन चैलेंजिंग वही होता है किसी कि के साथ बहुत बहुत सारे बहुत- लोग होते हैं ना, तो एक थोड़ा सा मेंटली डिप्रेशन में ही आते हैं बहुत सारे लोग। तो हाँ जी, तो वो जो डिप्रेशन और एंजाइटी से उनको बाहर निकालना वो बहुत बड़ा चैलेंजिंग होता है। So sometimes I am feeling like in a joker kind of also। कभी-कभी मुझे ऐसे कुछ Like, जोक्स okay. भी मारने पड़ते हैं कि so that I want them to smile all the time। लाफ के थोड़ा लाइट फील Exactly, because no one can do the seriously workout। फिर वो बोरिंग हो जाएगा। After some time they will feel कि अरे यार रोज जाके वही कर रहे हैं, वही बज रहा है गाना, वही कर रहे हैं। हाँ So it's not a good thing for them because वो already जिस वजह से आ रहे हैं वो वजह उनकी satisfaction उनको नहीं मिल रहा है। So we need to understand that and that is a big challenge for me actually। So we need to understand कि क्या चल रहा है। It's a little bit of face reading kind of thing। यस यस So I do it very nicely। Wow. I'm blessed with that। I feel very lucky कि मैं समझ सकती हूँ कि आज बंदा किस मूड में आया हुआ है, इसको कैसे उसको थोड़ा सा मोल्ड करना है। तो कभी एब्स एक्सरसाइज करना होता है तो मैं उनका मूड देख के ठीक है चलो आज कोई एब्स वर्क नहीं करेंगे, चलो आज कुछ और कोई एक्सरसाइज कराता है। हाँ जी। तो उनके हिसाब से करना पड़ता है फिर। How do you stay updated on the latest trends and best practices in your field? Yes. For that purpose, I used to manage to attend some workshops, some master classes, and yes, always you need to upgrade yourself for the fitness purpose also because fitness science जो है वो हमेशा थोड़ा सा upgrade होता रहता है। पहले के ज़माने के जो मिथ थे, जो फैक्ट्स होते हैं, you need to follow some good people, listen to them, then attend their seminars. So this is the good thing to upgrade yourself। हाँ डेफिनेटली, वो तो है क्योंकि वो हर बार चेंज होने ही लगते हैं, हर 6-7-8 महीने उनके ऊपर रिसर्च चल रही होती है। Yeah. Well, okay. What methods do you use to assess the effectiveness of your work? क्या कौन से मेथड यूज कर रहे हो? या मेथड तो वही है जैसे मैंने अभी बोला आपको कि थोड़ा सा उनके हिसाब से लेना पड़ता है। बट या आई एम ट्राइंग टू डू कि रोज मतलब उनको एक मोटिवेशन दिया जाए प्रॉपर वे में, क्योंकि मोटिवेशन इज इतना इम्पोर्टेंट है कि सेल्फ मोटिवेशन इज अ बिग डील। ओके, कि मैं खुद भी अगर चाहूँ कि मुझे आज एक्सरसाइज करना है, लेकिन अगर मुझे वही मोटिवेशन की कमी मुझे खुद को भी होती है, तो मैं ये सब जब मैं खुद के लिए फील करती हूँ तो मैं समझ सकती हूँ कि दूसरे लोग भी फील करते होंगे ऑब्वियसली। सो सुबह उठ के उनको मैसेज करना, ये टुडे इज दिस सेशन, या लेट्स सी, खुद के मन में नहीं है ना, मुझे नहीं जाना यार, आज क्या करूँ, मैं सोने का मन है, फिर भी yes, इस बहाने ये आएंगे तो मैं भी आऊँ, ऐसा कुछ। So many times we I'm trying to do a different things
क्योंकि देखो चीज़ यहीं से भी खाई जाए तो पेट में ही जानी है, यहाँ से भी जानी है तो मतलब मुंह से ही जानी है, हाँ। बट यू नो यू नीड टू ऐड सम डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ द फॉर्म्स। कभी पिलाटेस कर लो, कभी पावर योगा कर लो, कभी टॉवल वाला एक्सरसाइज कर लो, वाह। कभी दिस डिफरेंट इक्विपमेंट यू कैन, हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स यू कैन यूज एंड यू कैन डू द वर्कआउट मोर स्पेशल फॉर देम। सो दिस इज द गुड थिंग टू assess them, like अब एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो ये भी, क्योंकि काफी ज्यादा लोगों के साथ 2020 का वक्त बड़ा खराब हो रहा है ना, ये वो चैलेंजिंग सिचुएशन, Correct. और ऐसे वक्त पर आपकी तरफ से क्या हो पाया जो आपको करके खुशी भी मिली, सेटिस्फेक्शन भी मिला, एंड यू फील लाइक कि चलो यार एक अच्छा काम किया, स्पिरिचुअल अपनी ग्रोथ हुई अंदर से, जी, है ना? सो हाउ यू हेल्प द पीपल, बिकॉज़ आई हैव हर्ड एक्चुअली यू हैव सो मच पीपल yeah. in that time, especially in that era. Yes. So I how- worked for the NGOs also that time. Not that time. Every time I used to go to NGOs and I teach them dance, fitness kind of thing. The Hmm. kids are there, the orphanage and all that. Like, and in COVID especially, I run a campaign like you can do the free workout session. हाँ. तो especially हम लोग yoga and then breathing exercises पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे. That time वो बहुत ज़्यादा important था. And so many clients from US, then overall world से लोग वहाँ पे join कर रहे थे. Wow. So it was amazing thing for me, and Actually, you helped a lot of people. yes, Very thank you so much. And they love to attend the session और वो wait करते रहते थे कि चलो आज क्या है नया. So it was amazing session. And that time I joined one fitness app also. So we met a different kind of people from different zone. So it was an amazing experience with that app also. And yeah, it's currently it's also going on. Wow. So now it's paid, but yes, that time So we you can take the name, yes, especially, no issue. that time we did free of cost for them. So yeah, it was a nice thing. Nice experience for you, Yes. personally yourself. Yes, exactly. Huh? Wow. Okay. So now some questions also. Can you share an example of a successful case helped by you? कोई एक केस Yes. आपने देखा हो? जी जी. मेरे पास एक ऐसा एक केस था. वन गर्ल, she was blind actually, and she wants to learn some dance from me. Okay, so it was a great challenge for me, the touch therapy. So I attended some seminars for her, how to handle the blind people, how Especially to मतलब talk पहले with मैं them. तैयार हो जाऊं, Exactly. मैं अपने को ट्रेन करूं, then I'll train her. जी. तो मैंने खुद जस्ट ऐसे इमेजिन किया कि मैं खुद ही ब्लाइंड हूँ और फिर हाउ आई कैन लर्न द स्टेप्स एंड ऑल दैट. सो एंड शी लर्न वेरी नाइसली. शी परफॉर्म ऑन अ स्टेज एंड इट वाज माय ग्रेट सक्सेस. आई ऑलवेज फील लाइक कि वो मेरी वजह से उसने अपना सब ड्रीम पूरा किया. बाद में उसने मतलब लेटर वेटर भेजा आपको, मैसेज? yes, she always admire me. Yes. Okay. Now, what matters, जो कि आपने बता दिया effectiveness के लिए, but how do you incorporate technology into your work? अब that we know कि चलो आप Zoom मीटिंग कर लेते होगे, अभी ऐप आ गए हैं काफी सारे. जी जी. और इसके अलावा आप मतलब कैसे टेक्नोलॉजी को यूज करते हो अपने काम में? Yeah, technology basically, it helps a lot. Exactly. क्योंकि सिर्फ Zoom वगैरह तो हम यूज करते ही हैं. नॉर्मली जब वीडियो और ऑडियो कॉल से कनेक्ट करना पड़ता है तो so many things are important. Yes. जैसे माइक होता है, then you need to share the music via laptop. Yes. So Zoom is creating very nice things nowadays. Like there is a timer also, and you can share a music. It's या प्लेसिंग वैसी हो, क्योंकि अब Yes. आप स्टूडियो से कर रहे होते तो भाई जी. तो वो दूर दिखता है क्योंकि आप वहाँ लगाओगे जी, लैपटॉप. So और you यहाँ can आप use practice the करा रहे web हो. camera, then the mic system. Yeah, it's good nowadays. Like you can just order from the sites and you can get at home, Wow. delivered Yes. at home in a day. So not a problem that much. Great. तो मतलब Yes. वो हेल्पफुल रहा है. Yes, it's very useful for us. Wow. Okay. State your thoughts on women's empowerment. कभी मैं आऊँगा बाकी कुछ पर्सनल एंगल्स पे, because I know that you have been also difficult situation in your life. Yes. तो वो भी एक वहाँ से पार पाना आना. Yes, So yes. you can Of also course, open एक up yourself. फिटनेस but इंस्ट्रक्टर के लिए सिर्फ इतना ही नहीं है कि बस वो फिटनेस के लिए उनको लेसन दे रहे हैं या फिर ये कर रहे हैं. तो यू नीड टू कनेक्ट विद द पीपल वेरी नाइसली. और जो लेडीज होता है स्पेशली,
उनके लिए कुछ अलग ही होता है, लाइक यू नो, जैसे अभी हमने बात की कि जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन और इसमें तो लोग होते ही हैं, मोस्टली तो 60-70% होते ही हैं। डिफरेंट इश्यूज होते हैं, नॉट नेसेसरी कि एक ही मतलब लेडीज के लिए होता है, सो मेनी डिफरेंट इश्यूज एंड yeah, they are doing very well, I think so, because nowadays women are like doing the housework, the corporate work. Yes, definitely. Doing with that, they are taking a time for the exercise, the fitness, and if she is fit, she can take care of their families also. Definitely. If she is not fit, then it's really difficult to give the lesson to her, the children, the husband, you know, the all the family. You need to do that. Yes. And especially in every field. Every field. Okay. Now, if you had not been a yoga instructor, you would be. Yes. कुछ tricky question शुरू करूँगा. I think I maybe like a psychotherapist, something. Okay. Because I like to counseling the people. I like to spread the positive vibes. Okay. अच्छा Know them, लगता है talk with उनसे them. बात करके, उनकी सिचुएशन समझना, उनसे बात करना, फिर आई एम ट्राइंग टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स आल्सो। उनके मतलब यू नीड टू बी, मतलब मैं समझती हूँ कि आई कैन डू दैट वर्क वेरी नाइसली। You understand that. आई अंडरस्टैंड देम, एवरीवन। Okay. Yes. If you had not been, जो कि आपने बता दिया था, अब स्पेशली एक नया और पूछने वाला हूँ मैं क्वेश्चन, और वो हमारा फेमस रैपिड फायर राउंड है, लेकिन उससे पहले एक और लास्ट सवाल आपसे, हाउ डू यू जगल योर हॉबीज विद योर करियर, और स्पेशली द हॉबीज विद द करियर, क्योंकि अब ये हॉबीज ही है जो करियर बन चुकी है, तो ये और Yes. अच्छी बात है. क्योंकि ये तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, हॉबीज और मेरा प्रोफेशन एक ही है, तो मेरी हॉबीज भी अपने आप ही उसी में डेवलप हो रही थी। ये बात अलग है कि आई एम BSc पैथोलॉजिस्ट एंड दिस इज वेरी डिफरेंट फील्ड फ्रॉम दैट फील्ड। लाइक मैंने सोचा था कि मैं एक पैथोलॉजिस्ट बन जाऊंगी, कोई एक लैब का सेटअप कर लूंगी और बस मैं नहीं बात है कि स्पेशली ये पता चल यूरिन, गया ब्लड और वही टेस्ट ब्लड करती टेस्ट रहूंगी। कराना तो मैं कांटेक्ट करूंगा, इससे ज्यादा फीस नहीं लेना. अभी तो मैं भूल चुकी हूँ पैथोलॉजी का कोई सिलेबस, बट यस मैंने सोचा था कि मैं ऐसे ही कुछ करूँगी, बट यस आई फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन माय लाइफ एंड इट वाज द सिचुएशन लाइक कि आई नीड टू अर्न। डेफिनेटली उस पर बात करेंगे, इफ यू वांट टू डेफिनेटली आई विल शेयर। एंड साइमल्टेनियसली आई नीड टू लाइक यू नो मेरे जितने भी हॉबीज थे मुझे वो भी पूरे करने थे। तो अभी ऐसा हुआ कि मेरे हॉबीज ही जब मेरा प्रोफेशनल बन गए, तो आई एम लाइक मोर इनटू माय प्रोफेशनल, यू नो। ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसे अर्न करने के लिए कोई क्लासेस चला रहा है, बिकॉज इट्स माय Now it's your work, passion. it's your lifestyle also. Exactly, it's my passion to do something new, to learn the things, and yes, to train the people. It's my passion, it's not for the money so many times. Yes. और ऐसा भी होता है फिर घर में, तो बच्चे डरते होंगे कि हाथ में कैंची देख ली, सुई देख ली, अब ये ब्लड निकाल लेंगे, अब ये हमारा टेस्ट ले लेंगे, इससे दूर रहो. नहीं मैं मेरा खुद का टेस्ट करने के लिए दूसरे लैब में जाती हूँ. Okay. So now I was coming with our rapid fire round. I think you are ready. It's our famous rapid fire. Yes, Okay, sure. great. Best advice you got in your career? Don't look back, just go ahead. Oh, nice. Okay. The happiest moment of your life? I think I got my daughter. Okay, got a bond. Okay. The saddest moment of your life? You want to share? When you lose some loved one. Okay. Challenging moment of your life? Yes, challenging is like when you don't have the money and you need to do something special. For running yourself Yes. and family. Definitely. Your favorite actor? Hrithik Roshan. Okay. Favorite actress? Actress Alia Bhatt. Okay. Your favorite book? Without My Daughter. Oh, that's a nice book, यार. ये पहली पसंद है especially. ये ऐसा लगा कि एक स्टेटमेंट आया है. वाह. Okay. Favorite movie? Movie I like Dil To Pagal Hai for the music and यार अपना Someone Somewhere Has Made For You. वो जो उसका वो था लोगो, जो स्पेशली उन्होंने मैसेज दिया था इस मूवी से. Okay. Favorite food? food is dal chawal, normal. ये कॉमन है. Favorite holiday destination in India or in the world? Yeah. Recently I went to Andaman and it's amazing place. Yeah.
Wow. So there was the famous rapid fire round. Thank you so much for that. और अब आगे बढ़ने वाला हूँ. अब लूंगा कुछ insights आपकी लाइफ के. Okay, you ready for that? Okay, what is the greatest lesson you learned from your students? Patience. Okay, an idea that changed your life. Idea when you pursue yourself, your motto for your life, you know. Okay, how has success changed you? Success changed me a lot. Like I'm more calm, I'm more patientful now. Actually, see you. You come. Okay. The tricky question is now that. Okay. Best role of your life: mother, daughter, wife, or yoga teacher, instructor. Well, I think instructor. Okay. That is the best role of your life. Yes. Okay. अब एक और difficult question है. What hurt you the most? I this. Yes. कभी कभी बहुत बुरा लगता है कि कोई मेरे वजह से कोई सक्सेस नहीं कर पाता अपना गोल. तब थोड़ा हर्ट होता है क्योंकि गोल जैसे मतलब कोई जैसे अभी आपने पहले भी बोला था कि जैसे कोई आता है मेरी शादी है 2 महीने के बाद एंड देन आई वांट टू रिड्यूस 10 kg. दैट इज नॉट पॉसिबल, ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल बाय साइंटिफिकली आल्सो. बट वो 2-3 kg वो लॉस कर लेते हैं, फिर उसके बाद में उनका मोटिवेशन चला जाता है या फिर वो डिसकंटिन्यू कर देते हैं. दैट टाइम आई हर्ट्स अ लॉट कि अरे शायद पता नहीं क्या हुआ इनको, क्यों पेशेंस नहीं But for that, especially if you are not responsible also. Exactly. So you need to be very patient. Like you need to have a patience to do the weight loss also. It's not about only the A exercises. lot of hard work. You Definitely. need to follow a proper nutrition diet, and so many things are there. But people are like, you know, they think Especially उनको कि तो ये लगता है कि हाँ, हम बस जिम में आए, थोड़ा जी, पसीना जी. आया और हो गया. It's not actually like that. It's a long time. It's Long a long journey. Yes. Yes. क्योंकि सिर्फ अंदर ही नहीं है ना कि मतलब आपने जिम में एक्सरसाइज जी. किया हो गया. उस टाइम पे आपको थोड़ा diet हर्ट करना होता है है वैसा. कि डिसकंटिन्यू कर लिया, अरे ये तो प्रोसेस में था, व्हाई दीस पीपल आर नॉट ट्रस्टिंग द प्रोसेस. वो टाइम पे थोड़ा होता है हर्ट. बट रियल लाइफ में किसी और रीजन से मतलब कुछ हर्ट हुआ हो ऐसा कुछ. आई फील कि ऑलवेज जस्ट मूव फॉरवर्ड. पास्ट इज पास्ट. Focus on your present and you will be more successful then. How do you actually keep yourself, or actually you kept yourself forward? कि जब आपके पास लगा आपकी लाइफ में कि यार अभी एक ब्रेक आया है, एक बड़ा हादसा कुछ हुआ सकता है. हाँ, थोड़ा अगर कुछ होता है लाइफ में या फिर किसी भी सिचुएशन से आप हर्ट होते हो या फिर अपने आप को बहुत लो महसूस करते हो, तो उस टाइम पे वो सब होता ही है. एग्जैक्टली, बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग एंड एवरीवन इज सफरिंग फॉर दोज काइंड ऑफ फेजेस. यू नो, लाइफ के फेजेस हैं बहुत सारे. यस, यू नीड टू जस्ट कीप काम. थोड़ा सा साइलेंस, मेडिटेशन, इट हेल्प्स यू अ लॉट. Okay. यस, Great. God bless you for that. थैंक यू. Now, this or that round. अब मैं आपको कुछ चॉइस देता हूँ और आपको चूज करना है कोई एक ऑप्शन. Okay, you ready? Veg or non-veg? बोथ. Okay. Tea or coffee? Tea. Gym or yoga? योगा. Early riser or night owl? अर्ली राइजर. Emotional or practical? इमोशनल. Books or Kindle? बुक्स. The aroma of pages. yes. No? Same here. Yes. Okay. Mountains or beaches? Beaches. Religious or spiritual? Spiritual. Library or classroom? Or especially for Classroom. yourself, library or classroom or studio or dance Well, hall? my class. Okay, your class. Okay, it means your studio. Okay. Okay. Amazon Prime or Netflix? Oh, Netflix. Z5 or Disney Plus Hotstar? Hotstar. Okay. Now actually I'm giving you 4 or 5 options. You have to choose one. Peaky Blinders, Lucifer, Suits, Money Heist, Game of Thrones, House of Cards. Which one is your favorite? Suits is good, but Money Heist is more interesting. Okay, especially. Wow, nice. So there was Sandhya Lal with us, जिन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ और खूबी के साथ हम लोगों को अपने आंसर्स दिए थे डेफिनेटली, और हमें बहुत सारे जवाब दिए और अच्छे खासे जवाब दिए अच्छे खासे तरीके से. एंड डेफिनेटली वी आर लुकिंग फॉरवर्ड एंड मूविंग फॉरवर्ड विद हर कि अब वो अगली बार हम लोगों से कब मिलने वाली है, और स्पेशली अपने जुम्बा क्लासेस, yoga classes combined with Bollywood dance classes, definitely. And it was our pleasure. Actually, you came in the face in the crowd, and I hope actually we made you so much comfortable and very well. Thank you so much for inviting me. It's a great pleasure. My pleasure. Thank you.